morning. So in that part, first we'll see the transmitter. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. M-array PSK is also very important question as far as the chapter number 4 is concerned. M-array PSK, it deals with n number of symbols that can be transmitted. Sound आ रहा है. एक मिनट. Let me. यस मैम, आपके बैकग्राउंड से. 1 minute, hold on. I will reduce the speed of fan. Is it okay now? Am I audible properly? Yes, ma'am. Okay. Okay, M-array PSK, first we'll see the transmitter. In the last lecture, we have seen QPSK transmitter and receiver. So M-array is basically extension of QPSK. Okay, in QPSK, का ही further extension है. When we increase the number of symbols, when we increase the number S1, S2, S3 डॉट 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 अप टू SM, जब हम इतने सिंबल्स को इंक्रीज करते हैं तो आपका रिजल्टेंट सिस्टम बनता है M array. Okay, here M का relation is given as 2 raised to n is equal to m. This also I have explained in the last lecture, where n is the number of signal levels and m is the total number of combinations that we are going to get out of these bits. Okay, so there will be how many phase shifts? There will be m number of phase shifts. Like for QPSK, the total phase shifts were 4. Therefore we each bit will have, each carrier will carry the 2 bits. So this is the relationship. The same concept is extended for M array PSK transmitter. If you understand, अगर आपको वो समझ में आया है, if you understood the QPSK, you will be definitely understanding the M array PSK. The block diagram is also very much similar of the receiver, especially that of the QPSK receiver. तो कैसे याद रखने का है? QPSK receiver और M array receiver, वहाँ पे डिवाइड फिर कैरियर का जो रिकवरी सर्किट एंड ऑल एवरीथिंग, वहाँ पे हम since it was quadrature we were dividing it by 4, but now in M array, since it is m number of symbols, we are dividing it with m. Okay, so that is the only extension between QPSK and M array PSK. So what is the major advantage of M array? Last discussion, can you recall it? What is the basic advantage? Why we are increasing the number of symbols per carrier? What is the main purpose behind it? Anybody? Am I audible to all? Hello, am I audible properly? Yes, sir. Okay, what is यस the, मैम. yes, what is the purpose of going for higher order phase shift key in modulation? Just one word answer. To reduce the बैंडविथ bandwidth. रिड्यूस. To Bandwidth. to reduce the requirement of bandwidth. Okay, but at the cost यस of, मैम. at the cost of circuit complexity. Okay, circuit यस becomes मैम. more and more complicated when we go for higher order of phase shift, or बैंड फेस शिफ्ट. or we go for higher order of phase shifts, and as we go on increasing the number of symbols. So जो QPSK का डिसएडवांटेज है वही M array का डिसएडवांटेज है, जो QPSK का एडवांटेज है वही M array PSK का एडवांटेज है. Okay, so first we'll see why it is the block diagram for M array transmitter, and let me clear the things. So as I told you, M array transmitter, it transmits m number of symbols, and the relationship between number of bits and symbol is already I have given here as 2 raised to n is equal to m. Okay, where m is total number of symbols and n is number of bits per unit per symbol. अगर 3 बिट है तो देर विल बी 8 सिंबल्स, अगर 4 बिट है तो उसमें 16 सिंबल्स होंगे या सिग्नल लेवल होंगे. सो अगर यस मैम. 5 है तो 35 होंगे, 32 32. होंगे. ऐसा करके हम ये जनरलाइज रिलेशनशिप बनाते हैं. ओके,
तो सिग्नल लेवल उसमें क्या होंगे, S1 of t, S2 of t, up to we can go Sm of t. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, now draw the diagram with me. Give the heading transmitter of M array PSK. This is again frequently asked question in examination, or 10 mark question again. Very important part of chapter number 4. Okay, so draw the diagram with me. अब M array है, इसलिए you need something that is required to convert the serial bit stream into parallel. Okay, so that I will explain here. यहाँ से आपकी सीरियल डेटा इनपुट होगा. दिस इज द डेटा इनपुट बिट वेयर डेटा इज एंटरिंग इनटू द सीरियल फॉर्म. क्योंकि ट्रांसमीटर जो डेटा यहाँ पे जो इनपुट है, आपकी बाइनरी इंफॉर्मेशन सीरियल फॉर्म में ही रहेगी, लेकिन वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू पैरेलल फॉर्म. ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट. सो फर्स्ट इज आपका जो फर्स्ट सर्किट यहाँ पे लगता है वो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर लगता है. सीरियल टू parallel converter. This is the handwriting visible, understandable? Now this block is DAC. What is DAC? Digital to analog converter. And the next will be sine wave generator, because ultimately we want to convert it into form of, यहाँ पे आपको 8 बाइनरी है, जितने भी बाइनरी सिंबल्स आप यूज करेंगे उसका एक ही करस्पॉन्डिंग एनालॉग वोल्टेज मिलेगा. ओके, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या करता है, नंबर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन को इट विल कन्वर्ट इनटू एनालॉग सिग्नल. सो यहाँ पे आपको हाँ, यहाँ पे आपको टाइम वेरिंग सिग्नल मिलेगा, ऐसा वाला. तो यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा आपको इस तरीके का मिलेगा, और यहाँ पे आपको रहेंगे आपके बाइनरी इंफॉर्मेशन. ओके, और यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ सीरियली, वन बाय वन सीरियल इंफॉर्मेशन, और यू कैन से सीरियल डेटा इनपुट, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू पैरेलल बिट्स. ओके, बाय दिस सर्किट, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर. नाउ m नंबर ऑफ सिंबल्स यहाँ पे टोटल हम लोग अज्यूम करेंगे n-1 तक, एंड दीज सिंबल्स आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू digital form, analog form by the DAC circuit, digital to analog converter. और यहाँ पे आने वाला जो वोल्टेज है आपका, that is called as a V analog voltage. Okay, because it is converted. अब ये क्वांटाइजर का वगैरह कंसेप्ट आपको पता है? क्वांटाइजेशन अपने एनालॉग कम्युनिकेशन में स्टडी किया होगा, मैंने सैम्पलिंग थ्योरम में भी आपको बताया था. ये कन्वर्जन कैसे होता है वो बताने के लिए, उसका रिवर्स प्रोसीजर ये है. आपके अगर ऐसा सिग्नल रहता है तो उसके सैंपल्स लिए जाते हैं, और इस सैंपल को बाइनरी वैल्यू देते हैं हम. ये बताया था मैंने आपको सैम्पलिंग थ्योरम में, इफ यू रिमेंबर. सपोज दिस इज गिवन एज अ बाइनरी वैल्यू 0 0, दिस इज गिवन एज 0 1, लाइक दैट. तो कितने बिट का क्वांटाइजर है वो हिसाब से आपके डिजिटल में फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे जो होता है डिजिटल टू एनालॉग, इसके एग्जैक्टली उल्टा होता है, मतलब बाइनरी को करस्पॉन्डिंग एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेशन कंसेप्ट से, ऐसा. Okay, so that is how we are going to get the analog voltage at the output of DAC. Okay, or now the information is available here, and now we have to convert it into, connect it with the carrier. So sine wave generator or phase control oscillator is here, that will be multiplied in this multiplier. Simply sine wave generator लिख देती हूँ. It is nothing but carrier signal. Okay, and at the output you are going to get the M array PSK. Let me know when the diagram is over. मैम लास्ट वाला नहीं समझ में आया. ये कैरियर के लिए है. हाँ, दिस इज फॉर कैरियर. साइन वेव इज बेसिकली सिनुसाइडल, एनी कैरियर सिग्नल, जिसको जो कैरियर हम लोग असाइन करेंगे. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, मॉड्यूलेशन करना है ना.
तो इसको कैरियर चाहिए, आपकी इंफॉर्मेशन वोल्टेज है और ये आपका कैरियर जनरेटर है। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या? इंफॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय कैरियर। कैरियर। हाँ, तो ये आपका कैरियर बॉक्स है ये वाला, और यहाँ पे आपकी आने वाली इंफॉर्मेशन का एनालॉग आउटपुट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होता है, एंड दैट्स हाउ वी गेट द एम एरे फेज शिफ्ट कैरी सिग्नल। इज इट क्लियर? रिमेंबर दिस इज कैरियर एंड दिस इज मैसेज। अब एम एरे है, इसलिए एम एरे मतलब m नंबर ऑफ सिंबल्स, ईच हैविंग n नंबर ऑफ बिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कंफ्यूज मत करना। m इज नंबर ऑफ सिंबल्स and n is bits per symbol. Okay, so transmitter is very simple. Serially data input होगा and it will be converted into parallel form. Parallel form में n-1 तक I am considering the general form of m array. I'm not, see इसके types क्या हो सकते हैं? 8 array PSK, 16 array PSK, 32 array PSK, like that. Getting my point? 2 raised to n. Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ जनरल, तो इसके लिए मैंने n-1 लिखा है, 0 से स्टार्ट किया इसलिए। ओके, सो दिस इज द वेरी सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम एरे ट्रांसमीटर। एनी क्वेश्चंस हियर? No, ma'am. शैल आई क्लियर द स्क्रीन? Yes, ma'am. Okay, now next part is एम एरे रिसीवर। आपके पास लास्ट लेक्चर में मैंने आपको QPS के रिसीवर बताया होगा, वो डायग्राम जरा ओपन करो, इट मस्ट बी देयर इन योर नोटबुक, yesterday's lecture, because what I am saying, it is just the extension of QPSK. MRA PSK is extension of QPSK. Are you getting this point? किसने ओपन किया है? मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ही सिमिलर है QPS के रिसीवर से। So anybody there? Afsha? So there will be a carrier recovery circuit which is similar to QPSK. यहाँ पे रहेगा आपका फर्स्ट ब्लॉक, यहाँ पे हमने रेस टू 4th पावर किया था QPSK के लिए, याद है ना? तो यहाँ पे रेस टू mth पावर होगा। ये आपका बैंड पास फिल्टर है और यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट द फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। दिस इन QPSK we हम लोग यूज कर रहे थे डिवाइड बाय 4 सर्किट, बट सिंस इट इज अ m array symbol we will be using divide by m circuit, and this circuit is called as a frequency divider, last one. Just refer your previous diagram. If you understood the QPSK receiver, you will understand the m array receiver. सिर्फ heading दो and draw the diagram with me. ओके, सो यहाँ से आपका डेटा इनपुट एम एरे ट्रांसमीटर से इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे, एंड पार्ट ऑफ द सिग्नल वी आर अगेन कनेक्टिंग टू द कैरियर रिकवरी सर्किट फॉर separating the carrier from the received signal. Okay, and the signal is again passed to the integrator circuit for integrating for the time of bit duration. Draw the diagram with me. Give the heading M array PSK transmitter. Sorry, receiver. So this is a integrator circuit, one for even bits and one for odd bits. Same concept of QPSK. एक even bit के लिए और एक odd bit के लिए.
और ये इंटीग्रेट करेगा, उसका बिट ड्यूरेशन, सिंबल का बिट ड्यूरेशन कितना है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज अ टीएस. ओके, सो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा सिंबल और पावर का. So at this output we are going to get the product of integration from 0 to ts. Integration from 0 to ts. ts is a symbol period. Okay, and output में आपको मिलेगा ये even के लिए pe into ts अगर even bit है तो, और odd के लिए po into ts. Okay, and this output will be, यहाँ पे क्या था, anybody can tell me. यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है एम एरे पी एस के वाली, मॉड्यूलेटेड आउटपुट फ्रॉम द ट्रांसमिटेड. ये मॉड्यूलेटेड एनालॉग सिग्नल यहाँ पे मिलेगा आपको. क्यूपीएस के में क्या था, यहाँ पे रेज इनपुट टू फोर्थ पावर था, बराबर. तो एम एरे में रहेगा रेज इनपुट टू हाउ मच पावर, M. यस, mth पावर. समझ में आ रहा है ना बच्चों दोनों में क्या सिमिलैरिटी है. यहाँ पे बैंड पास फिल्टर था बीपीएफ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एंड इट वाज, वहाँ पे 4 एफसी रिकवर हो रहा था, यहाँ पे कितना एफसी रिकवर होगा, एम अमाउंट ऑफ एफसी. अब उसमें MFC. उसको एम हटाना है, उसको हमको एम में से सिंगल कैरियर जनरेट करना है. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट. वहाँ पे हमने 4 का यूज किया था, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडर M का यूज कर. हाँ, यहाँ डिवाइड बाय एम करेंगे. स्पेलिंग बराबर है क्या, डिवाइडर. ओके, सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय एम सर्किट. ओके, सो लाइक दिस कैरियर यहाँ पे पास हो जाएगा और वो डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको 2 कैरियर मिलेंगी, वन इज कॉस एंड वन इज साइन. इट विल बी वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ Sine. QPS. So I'll just draw one here. So एक मल्टीप्लायर को मैं यहाँ कनेक्ट करती हूँ. I will name it as cos, and one I will connect on the multiplier of the above side and I will name it as sin. मैं स्क्रीन के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ, आप थोड़ा सा अपने बुक के हिसाब से ड्रॉ कीजिए. Okay. So this is a multiplier, one for sine and one for cos. The upper one is sin omega ct. आप वो देख लेना इवन के लिए कौन सा कैरियर यूज किया है, ऑड के लिए आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं. खाली जो सिस्टम ट्रांसमीटर में आपने यूज किया है, रिसीवर में भी आपको वही रिकवरी के लिए यूज करना है. अगर ट्रांसमीटर में आपने ऑड के लिए यूज किया है साइन, तो रिसीवर में भी साइन ऑड के लिए यूज करना है, एंड वाइस वर्सा. सो यहाँ पे जो सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइन ओमेगा सिटी मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो कॉस ओमेगा सिटी एस ऑफ टी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, सिग्नल इंफॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय कैरियर, और यहाँ पे एस ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय कॉस ओमेगा सिटी ऑन दिस साइड. एंड देन यहाँ पे क्या रहता है, एनालॉग. ये सिग्नल आपका किस फॉर्म में है अभी, यस, इंटीग्रेटर के बाद में आपका सर्किट डिजिटल. तो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक होना चाहिए, यहाँ पे आपका सिग्नल किस फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में है फॉर इवन एंड ऑड बिट्स के लिए. तो यहाँ पे आपको वापस सिग्नल किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एनालॉग में. यहाँ पे होना चाहिए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. सॉरी, यहाँ पे आपको वापस बाइनरी स्ट्रीम रिकवर करना है, तो इट विल बी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. ओके,
यहाँ पे आपका क्वांटाइजर यूज होता है जो क्वांटाइज करेगा एनालॉग सिग्नल आउटपुट एंड दिस आउटपुट विल बी योर फाइनल आउटपुट बिट सीक्वेंस बी आउट। आपका मैसेज बाइनरी फॉर्म में है, सो बिट सीक्वेंस बी आउट। आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस सिग्नल इज कन्वर्ट दिस फॉर्म में। यहाँ पे ये इस फॉर्म में रहता है तो वापस उसको आने वाला इनकमिंग सिग्नल अगर एनालॉग फॉर्म में है तो उसको करस्पॉन्डिंग बाइनरी बिट देता है एंड दैट सर्किट इज कॉल्ड एज द क्वांटाइजर। ओके, एंड फाइनली वी रिकवर द ओरिजिनल बिट सीक्वेंस। और ये जो टोटल सर्किट है इसको बोलते हैं कैरियर रिकवरी, सेम एज क्यूपीएस। नाउ ये कौन से टाइप का डिटेक्शन है, सिंक्रोनस या असिंक्रोनस या कोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट? Which type of recovery or detection is this? अगर हम आने वाली सर्किट का ही कैरियर से ही लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं तो उसको कौन से टाइप का डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं? अच्छा, यहाँ पे जो एडीसी में आने वाला है वो आउटपुट पैरेलल फॉर्म में होगा। वापस आपको सीरियल कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैरेलल एडीसी एंड पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, ऐसा एक ही नाम दे देती है क्योंकि आपकी बाइनरी सीक्वेंस सीरियल फॉर्म में होती है। दो ब्लॉक है, मैंने कंबाइन करके एक ही बता दिया। चलिए आगे, हो गए क्या? Shall I clear the screen? Yes, ma'am. ओके, कंक्लूडिंग पार्ट, आप ही बता सकते हैं मुझे क्या एडवांटेज हो सकता है बीपीएसके का, सॉरी एडवांटेजेस ऑफ एम एरे पीएसके। First is bandwidth is reduced, with increased number of, yes or no, with increased number of symbols. ये तो बेसिक एडवांटेज है कोई भी पीएसके का, एनी पीएसके, बीपीएसके, क्यूपीएसके, लाइक दैट। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज वही है। Suitable to applications where signal amplitude varies due to change in amplitude, due to characteristics of, I will explain this point, what does it mean, characteristic
medium used for transmission, or you can say transmission medium. क्या मतलब हो सकता है? सेकंड पॉइंट कौन बता सकता है क्या मतलब है इसका? सेकंड पॉइंट एडवांटेज, सी रिमेंबर दिस इज द फेज शिफ्ट, चाहे वो एम एरे हो, बीपीएस के हो या कुछ भी हो। फेज शिफ्ट में हमेशा एम्पलीट्यूड के वेरिएशंस को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि खाली रिसीवर क्या चेक करता है? फेज कहाँ पे चेंज हो रहा है वही चेक करता है। सो अगर एम्पलीट्यूड वेरी भी हो रहा है तो दैट इज इनसेंसिटिव बाय द रिसीवर. रिसीवर विल नॉट मिसलीड विद द चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेकंड लाइन? It is suitable to applications where signal amplitude varies due to characteristics of transmission line. अब ट्रांसमिशन लाइन में आपने कोएक्सियल केबल यूज किया है, ऑप्टिकल फाइबर यूज किया है या कॉपर वायर यूज किया है, जो भी मीडिया आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से एम्पलीट्यूड में वेरी. ओके, एंड दैट चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड इंफॉर्मेशन कैन क्रिएट द एरर इन द रिसीवर. बट सिंस पीएसके सिस्टम it senses only the changes in phase and not in amplitude. Therefore उस सिचुएशन में ये एप्लीकेशन में आपका पीएसके या एमआरए पीएसके सुटेबल है जहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया आप क्या यूज कर रहे हैं, कॉपर वायर, ऑप्टिकल फाइबर या एनी अदर मीडिया विच यू आर यूजिंग, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड वेरी हो सकता है. ओके, बिकॉज वेरी एम्पलीट्यूड अगर वेरी हो रहा है तो रिसीवर इज नॉट केयरिंग ऑफ इट, रिसीवर इज ओनली लुकिंग एट द फेज चेंजेस. Therefore, ऐसे जहाँ पे ट्रांसमिशन करना है, जहाँ पे ट्रांसमिटर मीडिया की वजह से एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, ऐसे एप्लीकेशंस में एमआरए पीएसके या पीएसके सिस्टम इज वेरी मच सुटेबल because it does not care in change in amplitude, and so there will be very minimum error in the receiver after generating the received information. मतलब it can generate the error free bit stream as that of transmitted by the transmitter. So that is the meaning of point number 2, suitable for applications where signal amplitude varies due to characteristics of transmission medium. So these are the advantages of M array PSK. मैम ये सेकंड वाला पीएसके में भी रह सकता है ना? हाँ, सब में, जहाँ पे भी एम्पलीट्यूड इनसेंसिटिव सर्किट रहता है ना, एम्पलीट्यूड इनसेंसिटिव, तो इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर PSK, not only M array. Okay, shall I clear the screen now? Shall I clear the screen? Yes, ma'am. Okay, now disadvantages. Again the same as that of the disadvantages of M array PSK. क्या हो सकता है? मैंने स्टार्टिंग करते वक्त आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस के बारे में बताया था. व्हाट इज द यूक्लिडियन डिस्टेंस? एनीबॉडी? लास्ट लेक्चर, कल का लेक्चर, हमने कॉन्स्टलेशन डायग्राम बनाई थी, and in that I have explained you what is the meaning of Euclidean distance. Just refer your back pages, because that again disadvantages मतलब क्या? There is some problem in the system. तो जनरलाइज वे में पीएसके सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्किट. दैट इज द लिमिटेशन. इज इट क्लियर? Yes? Am I audible? I will give you a hint. The disadvantage is related with the Euclidean distance and probability of error. Now who will frame the sentence? इसका मतलब क्या? Disadvantage of MRA PSK में. The very first. What about the probability of error in MRA? Increases. Why it increases? You are right, it increases. But why it increases? Distance between the two lines will be very close. What? नहीं, ये आपका कंसेप्ट बराबर है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल नाम है उसको. Distance between which two point? Distance between which two points? Girls? Signal points. Yes, two signal points.
का जो डिस्टेंस रहता है दैट इज कॉल्ड एज यूक्लिडियन डिस्टेंस। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो जितना कम होता जाएगा यूक्लिडियन डिस्टेंस, अगर वो कम होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बढ़ती है। ओके, अब एम एरे में सिंस द सिंबल्स आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड, लाइक जैसे जैसे हम बिट्स नंबर ऑफ सिंबल्स इंक्रीज करते जाते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस कम होता जाता है, और यूक्लिडियन डिस्टेंस कम होने के कारण क्या होता है, आपकी एरर प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन एम एरे पीएसके। ओके, सो दिस इज द डिसएडवांटेज। देखो, देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कुछ पाने के लिए, ट्रेड ऑफ का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमने बैंडविड्थ तो रिड्यूस कर ली एम आर ए पी एस के में, लेकिन हमको प्रॉब्लम क्या हो गई उससे, एक तो सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज अ वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, वेरी हाई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। So circuit complexity is high. That is a disadvantage of all PSK system. क्योंकि उसको PSK को ना नॉन कोहेरेंट चलता ही नहीं, PSK को हमेशा डिटेक्शन कोहेरेंट ही करना पड़ता है। सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई बोल सकते हैं आप, क्योंकि वो एम एरे है। QPSK में अगर वेरी हाई है तो एम एरे PSK में इट विल बी वेरी वेरी हाई। ओके, सेकेंड थिंग, second disadvantage, the probability of error increases with increase in number of bits. With increasing number of bits, or we can write down symbols. Bit से precise word symbol ही है, don't write bit, write down symbol only. With increase in number of symbols, क्योंकि symbol ही ट्रांसमिट करते हैं, हम bits नहीं ट्रांसमिट करते, ग्रुप ऑफ बिट्स ट्रांसमिट करते हैं, that is called as a symbol. So this is about the M array transmitter and receiver. Is it clear? Hello, is it clear? M array transmitter and receiver. Am I audible? Am I audible, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, तो M array clear हो गया आपको? Yes, ma'am. Okay, the last part of chapter number 4. Okay, last part of chapter number 4. Let me share the screen. Do you see the blank screen now? And that is called as quadrature amplitude shift key. अभी नाम में ही सब कुछ लिखाया, quadrature मतलब 4, एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड, quadrature amplitude shift, और ये शिफ्ट किससे रिलेटेड है, ये फेज से रिलेटेड है, और एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है और फेज भी चेंज होता है। तो क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड शिफ्ट की इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट की, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, रिमेंबर, फेज प्लस एम्पलीट्यूड। मतलब इस मॉड्यूलेशन मेथड में दोनों चेंज होते हैं। क्या क्या चेंज होते हैं, फेज भी चेंज होता है और
एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है। ओके, और इसको सिंपल लैंग्वेज में इसका शॉर्ट फॉर्म है QAM सिग्नल, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, QAM. Are you getting? It is a hybrid type of modulation of two modulation. One is phase and another is amplitude. Is basic clear? Quadrature मतलब 4, एम्पलीट्यूड मतलब इसमें फेज शिफ्ट भी होगा और एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। अभी कौन से एप्लीकेशन में यूज होता है सबसे ज्यादा? जहां पे अपने को हाई नॉइज इम्यूनिटी चाहिए, हाई नॉइज इम्यूनिटी। ओके, ऐसे हाई, यहाँ पे मैं हाई बोलती हूँ, हाई नॉइज इम्यूनिटी जहां पे रिक्वायरमेंट है, हाई नॉइज इम्यूनिटी जहां पे भी जरूरत पड़ती है वहां पे हम कौन सा मॉड्यूलेशन पर यूज करते हैं? क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो अभी आपको और कुछ याद रहे ना रहे इसमें से, इसका मैं ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन और कॉन्स्टलेशन डायग्राम भी आपको बताती हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। जैसे QPSK का बताया था, एंड देन वी कैन सी हाउ द एम्पलीट्यूड एज वेल एज द फेज both are changed in QAM transmitter and receiver. Okay, so what is the main advantage of COM? Yes, Noise immunity high. आपके सामने ही लिखा है, सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका, नॉइज इम्यूनिटी ऑफ कॉम इज हाई। अब कॉम के भी टाइप्स हैं, उसके स्कीम के नाम है टाइप्स ऑफ कॉम, 4 कॉम, 8 कॉम, 16 कॉम, 32 कॉम, 64 लाइक दैट। अगेन ये 2 raised to power और सिंबल के हिसाब से चेंज होता है। तो दैट टेबल आल्सो आई विल शो यू, एंड टुडे वी विल सी द कॉन्स्टलेशन डायग्राम फॉर इट, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टॉप फॉर टुडेस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो फॉर द डिटेल ज्योमेट्री ऑफ कॉम। ओके, सो बेसिक पर्पस समझ में आया कॉम का क्या है? कॉम क्या है, किसका हाइब्रिड मॉडल है? फेज और एम्पलीट्यूड का। उसका फुल फॉर्म है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब नाम में भी एम्पलीट्यूड है। ओके, और यहाँ पे बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड एंड शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब है यहाँ पे फेज का मतलब, शिफ्ट मतलब फेज और एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड। तो दोनों को मिलाकर जब आप वेरिएबल करते हो, दोनों पैरामीटर, फेज को भी चेंज करते हो, एम्पलीट्यूड को भी, सिग्नल के एम्पलीट्यूड को भी चेंज करते हैं एज पर द इंफॉर्मेशन, देन द रिजल्टेंट सिग्नल इज कॉल्ड एज क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम। ओके, we will see the type and its constellation diagram, and then we will stop for today's lecture. In the next lecture we will discuss the details of COM. So shall I clear this? Yes, ma'am. Okay, now types of quadrature amplitude modulation. जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें एक टेबल बना सकते हैं हम। नेम मतलब कौन से टाइप का है, बिट्स पर सिंबल मतलब एक सिंबल में कितने बाइनरी बिट्स असाइन होंगे, एंड नंबर ऑफ सिंबल्स। So let me bifurcate this. Okay, name में first start, it starts from 4 QAM. What does it mean? 4 QAM per bit there will be change 2 bits of symbol. Bits, एक सिंबल में कितने बिट्स होंगे? 2, और फिर टोटल नंबर ऑफ सिंबल कितने होंगे? 2 raised to 2। ये बिट्स है, ये सिंबल में बिट्स कितने हैं वो ये नंबर है। ओके, तो कितने होंगे टोटल सिंबल? 4। 4 सिंबल कौन से हो सकते हैं इसमें? 0 0 0 1 1 1 1 0। एम आई राइट? 4 कॉम्बिनेशंस। Is it clear? Next will be 8 QAM. कितने सिंबल होंगे? 2 raised to कितना मतलब 8? If I write here as 8, 3. 2 raised to 3 मतलब हर एक बीट कितने बीट्स होंगे? एक सिंबल में 3 बीट होंगे। ये समझ में आ रहा है ना रिलेशनशिप? तो आपके सिंबल स्टार्ट होंगे फ्रॉम ऑल 0 0 0 0 1 अप टू ये कहाँ तक जाएगा? सारे सिंबल 1 1 1। मतलब ये सिंबल S1 है, ये सिंबल S2 है, ये सिंबल S8 है, सॉरी S7, क्योंकि मैंने 1 से नहीं 0 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम, S0 से लेकर S7 तक। समझ में आया? तो 8 कॉम में टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स विल बी 8। सो सिमिलरली वी कैन गो फॉर 16 कॉम। यहाँ पे बिट्स फॉर सिंबल होंगे 4 और टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स होंगे 16। It will start from 4 zeros and will end at
all 4 ones. So this is your S0 symbol, this is your S15 symbol. So is your types clear? कॉम के टाइप्स समझ में आए? It will start from 5 zeros and end with 5 ones. This is your S0 symbol और ये आपका S31 symbol. If I start with 0. Yes, students? Hello? Yes, ma'am. Shall I clear the screen? Now I'll see the two constellation diagram for COM. We will show his 4 COM, मतलब कितने symbols? अभी आपका टेबल देखो आप. 4 COM and 8 COM. कंपैरेटिव करेंगे, कंपैरेटिव भी करेंगे दोनों का. और आगे इसका एक्सटेंशन वैसे ही रहेगा. सिर्फ मैं फॉर एग्जांपल आपको 2 बता रही हूँ. ओके. सो 4 COM, इसमें टोटल 4 क्वाड्रेंट होंगे. मतलब टोटल फेज शिफ्ट इसमें 4 होंगी और एम्पलीट्यूड एक ही चेंज होगा. ओके. सो आई कैन राइट हियर एज 1 एम्पलीट्यूड एंड 4 फेज. और गेटिंग, मतलब एम्पलीट्यूड सबका एक ही रहेगा लेकिन फेज शिफ्ट कितनी रहेंगी? 4. सो रिजल्टेंट डायग्राम विल बी, कॉन्स्टेलेशन डायग्राम विल बी लाइक दिस. 4 है इसलिए एंगल आपका 40 इतना होगा जैसे क्यूपीएस के में था. 4 कॉम मतलब एक बीट में सिंबल में कितने बीट्स होंगे? सिंबल में कितने बीट्स होंगे? 2 बीट्स होंगे. करेक्ट. सो दिस इज द सिंबल. यहाँ पे आई विल नेम इट एज 0 0. दिस इज 0 1 1 0 एंड 1 1. समझ में आ रहा है? मतलब अभी एम्पलीट्यूड देखो बच्चों, और आपको एक पता है रूट ईएस का कंसेप्ट, एनर्जी. ओके. ये जो वेक्टर है ना, ये कितना डिस्प्लेस हो गया है, ये बताता है एम्पलीट्यूड. रिमेंबर दिस. क्योंकि अभी तक हमने एम्पलीट्यूड को डोंट केयर किया था पीएसके में, लेकिन कॉम में अपने को भी एम्पलीट्यूड के बारे में भी सोचना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो. सो ये जो रूट ईएस रहता है, इट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड. एम आई राइट? और ये दिखाता है, या एंगल जो दिखाता है वो उसका दिखाता है फेज. ओके. एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टेलेशन डायग्राम फॉर फोर कॉम. ओके. यहाँ पे सबका एम्पलीट्यूड लेवल एक ही है. यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने एक ही ओनली सिंगल एम्पलीट्यूड लिखा है. और फेज कितने बताए हैं? 4. Yes, is the constellation for 4 COM is clear? Yes, ma'am. Okay. Now how to draw the constellation for 8 COM? If I write, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2 वेरिएशंस दिखाऊंगी मैं. 2 एम्पलीट्यूड एंड 8 फेज. Yes, how to draw it? कितने क्वाड्रेंट बनेंगे टोटल? I'm sorry, not 8 phase, 4 phase only. Phases 4 ही, एम्पलीट्यूड 2 है ना. So 4 phase. That I will show you. डायग्राम के साथ में आपको समझ में आएगा. तो phase will be total 4, same as 4 COM. But each phase will represent 2 different amount of amplitude. अभी 8 COM मतलब एक सिंबल में कितने बीट्स होंगे?
हेलो, एक कॉम मतलब एक सिग्नल में कितने बिट्स होंगे 8 में? देखो टेबल, अभी जो पिछले टेबल बताया था वो टेबल देखो। यस, एनीबडी? Yes, how to show two amplitude with 4 phase differences? Pay attention. So this is symbol start कहाँ से होंगे 8K में तनुश्री? 8 कॉम मतलब 3 बिट्स बराबर पर सिंबल। Yes, ma'am. आपका पिछला टेबल जो मैंने टाइप्स ऑफ कॉम बताया ना उसमें टेबल देखो। 8 Yes, कॉम ma'am. मतलब देयर विल बी 3 बिट्स पर सिंबल। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम ऑल 0 0 0 1 ऐसा स्टार्ट होगा ना, और एंड में क्या होगा 1 1 1। एम आई राइट? 1 1 1. Yes, ma'am. ये बराबर है ना 8 कॉम का? अगर 16 होगा तो मैंने आपको टेबल में बताया 4 0 से लेके 4 1 तक टोटल 16 कॉम्बिनेशंस ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, अभी 8 कॉम बता रही हूँ इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, आई एम कंसिडरिंग 3 बीट्स पर सिंबल। सो दिस देयर विल बी एक फेज में देयर विल बी 2 एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, 2 एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेशन एंड 4 फेज। सो यहाँ पे ये सिंबल रहेगा फॉर 0 0 0 और दिस विल बी फॉर 0 0 1। ओके, सो हियर आल्सो द सेकंड फेज शिफ्ट 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो यहाँ पे अगला नंबर क्या है 0 1 0 एंड नेक्स्ट नंबर इज 0 1 1। यहाँ पे क्या होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए। यस, 0 1 1 के बाद अगला बाइनरी नंबर कौन सा है 4 है ना? 100. हाँ, ये 5, यहाँ पे आएगा One. 6 1 1 0 और यहाँ पे आएगा 1 1 1। सो इज इट क्लियर? 2 एम्पलीट्यूड पर फेज। एक फेज कितने एम्पलीट्यूड को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? 2 फेज को, सॉरी 2 एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल फेज। मतलब 0 0 का सिंबल के लिए जो कैरियर यूज होगी सेम कैरियर यूज होगी 0 0 1 के 0 लिए। 0 1 के. मतलब ये दो सिंबल एक ही फेज शिफ्ट से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। फिर दोनों में बायफर्केट डिफरेंशिएट कैसे करेगा रिसीवर? उनके एम्पलीट्यूड लेवल को चेंज करके देख के। ओके, वही फेज है लेकिन एम्पलीट्यूड यहाँ पे है कम है। ये जो ईएस रहता है ना, ईएस यहाँ तक की एनर्जी ई ऑफ एस, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है मतलब इट विल असाइन इट एज 0 0 0 और एम्पलीट्यूड यहाँ पे सपोज 2, यहाँ पे ट्वाइस हो गया इसके, सो आई कैन से इट्स 2 रूट ईएस। सो यहाँ पे अगर वही फेज है लेकिन एम्पलीट्यूड डबल हुआ है तो इट विल असाइन इट एज 0 0 1। इज द बेसिक कंसेप्ट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज constellation diagram for 8 QAM. Hello, is it clear? Yes, ma'am. Any questions up to this point? Any questions? Shall I clear this? Yes, ma'am. Eight Kamka, we'll see how the phase shifts are allocated. Okay, 8 मतलब symbol start from 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 4 5 6 and 7.
सो फॉर फर्स्ट 2 बिट्स वी आर शोइंग सिंगल फेज शिफ्ट. ओके, तो इसका मतलब इसको भी हम फेज शिफ्ट दिखाएंगे 0 डिग्री और इसको भी हम दिखाएंगे फेज शिफ्ट 0 डिग्री. ये आपके नंबर ऑफ बिट्स और ये आपका रिजल्टेंट 8K QAM. इज इट क्लियर? कॉन्स्टलेशन डायग्राम के हिसाब से मैं सिर्फ खाली टेबल बना रही हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अभी नेक्स्ट 2 सिंबल हमने 90 डिग्री फेज शिफ्ट से बताया है, मतलब इसको भी 90 डिग्री और इसको भी 90 डिग्री फेज शिफ्ट रहेगा. 100 को 180 डिग्री रहेगा, इसको भी 180 डिग्री रहेगा और यहाँ पे 270 डिग्री रहेगा और इसके लिए भी 270 डिग्री फेज शिफ्ट रहेगा. जो कॉन्स्टलेशन डायग्राम बनाई है उसको खाली टेबुलर फॉर्म में बताया है अलग अलग सिग्नल लेवल के साथ. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. आवाज बहुत ही स्लो आ रही है. नेटवर्क का इशू है क्या? डाउटफुल है? No, no, ma'am. Yeah. क्लियर? तनुश्री आई थिंक. और बाकी Yes, बॉयज ma'am. में से कोई? कैन यू मेक द वेवफॉर्म फॉर दिस नाउ? वेवफॉर्म बना सकते हो क्या इसके लिए? आपको यहाँ पे 2 लेवल ऑफ एम्पलीट्यूड यूज करने हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वेवफॉर्म है कॉम का, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड भी चेंज करना है और फेज भी चेंज करना है. ओके, सी 0 सिंबल के लिए हम क्या बता रहे हैं? फेज शिफ्ट. आई एम अज्यूमिंग साइन कैरियर, तो ये 0 है. 1 को इसका एम्पलीट्यूड में खाली इंक्रीज करूंगी. आई विल इंक्रीज द एम्पलीट्यूड टू डबल. ओके, सो आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड टू डबल लेवल. लेकिन फेज शिफ्ट चेंज हो रही है क्या? ये मेरा प्रॉपर साइन नहीं आ रहा है, लेकिन आप अज्यूम करो कि ये साइन वेवफॉर्म है. और एम्पलीट्यूड डबल दिखाना है. आपके बुक में लाइन होती है, मैं सिंपल एक ही कैरियर ले रही हूँ फॉर क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आप फेज शिफ्ट है क्या ये सिग्नल में और ये सिग्नल में? No, ma'am. वेवफॉर्म से ही क्लियर समझेगा. याद रखना, चैप्टर 4 बहुत सारा वेवफॉर्म से समझेगा. इंस्टेड ऑफ राइटिंग आप वेवफॉर्म दिखाएंगे तो राइटअप में भी लिख सकते हो अपने वर्ड्स में. अब ये मेरा 0 का है. ये पहला सिंबल का रिप्रेजेंटेशन देखो, दोनों सिग्नल की फेज शिफ्ट 0 ही है, मतलब फेज शिफ्ट इज नॉट कन्वेइंग एनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सॉरी फेज सेम ही है, एक ही फेज में दोनों. लेकिन चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? एम्पलीट्यूड. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. अभी ये देखो 010 और फेज शिफ्ट कितनी है? 90 डिग्री. अगर ये सिग्नल नॉर्मल है तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट सिग्नल आपको इसी एम्पलीट्यूड से निकालना है, क्योंकि ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम रहेगा लोअर सिंबल को. ओके, सो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड रहेगा 90 डिग्री फेज शिफ्टेड सिग्नल आपका ऐसा आएगा. इज इट क्लियर? 90 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे फेज शिफ्ट सेम रहेगी, लेकिन एम्पलीट्यूड ये आएगा. तो यहाँ पे आपका सिग्नल वेरी कैसे होगा? सेम फेज में लेकिन इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड. इतने एम्पलीट्यूड तक ही रहेगा, लेकिन फेज उसका चेंज नहीं होगा. ऐसा यहाँ पे इसका थोड़ा कनेक्टिविटी बताओ, ऐसा डिटैच नहीं रहता है वो. और मैंने जानबूझ के सिंगल कैरियर लिया है फॉर आपको फेज शिफ्ट प्रॉपरली समझ में आए इसलिए. ओके, यहाँ पे ऐसे कनेक्टिविटी बताओ बिटवीन द 2 सिग्नल्स. इज इट क्लियर? या देयर इज नो फेज शिफ्ट हियर.
but amplitude level is increased. Am I right? Hello, am I right? Yes, ma'am. अगला कैसे ड्रॉ करूं, कौन बताएगा? अभी 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, मतलब ये देखो ये नॉर्मल सिग्नल है, तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट वाला मुझे किस एम्पलीट्यूड लेवल पे ड्रॉ करना है? ये नीचे वाले एम्पलीट्यूड पे, क्योंकि वो नीचे वाला नीचे मिनिमम लेवल ऑफ सेकंड फेज शिफ्ट है, एम्पलीट्यूड मिनिमम है, सेकंड फेज शिफ्ट है। और अगला कौन से फेज शिफ्ट में आएगा, सॉरी कौन से एम्पलीट्यूड में आएगा? इस एम्पलीट्यूड में आएगा। एम आई राइट? सो 180 डिग्री फेज शिफ्ट मतलब ऐसा उल्टा सिग्नल साइन का, ऐसा आएगा। ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गई। जस्ट इसको भी थोड़ा सा डार्क करता हूँ ताकि कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए। यस और नो? बुक में डायरेक्टली पूरी वेवफॉर्म दी है, आपको कंफ्यूज हो सकती है, इसलिए मैं आपको वन बाय वन बता रही हूँ, वो भी सिंगल कैरियर में, सॉरी सिंगल ऐसा एक ही पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव साइकिल ले रही हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही। तो यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, इसके कंपैरिजन में, ओरिजिनल साइन वेवफॉर्म के कंपैरिजन में। पे अटेंशन टू दिस एंड पे अटेंशन टू दिस। टोटली 180 डिग्री का फर्क है, 180 डिग्री का इधर और इधर में। ओके तनुश्री, यहाँ पे क्या आएगा? 101 फॉर 180 डिग्री। मैम जो 011 का है ना उसका अल्टरनेटिव आएगा। लेकिन एम्पलीट्यूड ये आएगा, हाई आएगा, बराबर? हाँ यस। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसे आएगा? एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा यहाँ पे, बट बाकी सब फेज रहेगा सेम, फेज सेम रहेगा। ओके, सो एम्पलीट्यूड विल बी लाइक दिस। इज इट क्लियर? यस मैम। तो आगे का कंटिन्यू कर सकते हैं आप इस तरीके से। यहाँ पे आएगा वापस मिनिमम लेवल पे एम्पलीट्यूड आएगा, ये वाला, ये लेवल पे आएगा। और अगला जो है वो हाई लेवल पे आएगा। तो यहाँ पर अगेन 270 डिग्री, मतलब यहाँ पे सिग्नल आपका इस तरीके से आएगा विद दिस एम्पलीट्यूड लेवल। ओके, एग्जैक्टली देखो इसका जो ये दिख रहा है ना 90 डिग्री का अपोजिट आएगा 270 डिग्री। ओके, सो इट विल बी एग्जैक्टली उल्टा एनवलप, यहाँ पे नीचे से है तो यहाँ पे ऊपर से आएगा। लेवल एम्पलीट्यूड का इतना ही रहेगा, to start from here and end at here. Okay, and for this there will be again no change in phase shift, but amplitude will increase. It will start from here and end at here. So this is the continuous quadrature. It combines phase as well as amplitude. इस पिक्चर का, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कॉम सिग्नल समझ में आए, और खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो। बुक में 2-2, 3-3 कैरियर लेके बताया, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए एक ही पॉजिटिव साइकिल और एक ही नेगेटिव साइकिल बताया। कैरियर इज सेम, दो सिंबल के लिए फेज सेम रहता है, लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है एम्पलीट्यूड का और फेज का। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स हियर अप टू दिस पॉइंट? हेलो, hello, am I audible? Yes ma'am. So I'm stopping here. If you have any questions, you can ask me the question. Yes ma'am. Okay, again there is the comparison question. You have to compare between QPSK, compare between QPSK and QASK. Again, this is a comparison question. You have to compare between QPSK and QASK. So this is the homework, or you can Google it. You can get it on the net.
ये चैप्टर नंबर 4 का पीडीएफ मैंने भेजा है, उसमें भी दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है. So I think I will stop here now. Shall I clear? Yes, ma'am.